Good morning, everyone. Good Sorry, good morning. afternoon. It's now. Okay, so friends, we have with us Shri Vikas Sharma, who will be speaking on management principle, application in public systems and governance. And Vikas, she is a founding director and the chief executive of Center for Strategy and Leadership. And presently, he is also the president of H2 Life Foundation, editor of Business and Policy at Bharat Khabar, and national executive member of the Newspaper Association of India. He is also a member of the expert forum of the Corporate Law Journal. Apart from that, he has been consultant with the National Institute for Smart Government, and at present he is also served as consultant at the National E-Governance Plan, Indian Institute of Corporate Affairs, and also the National Foundation for Corporate Governance. And he has played a very important role in the implementation and execution of various governmental projects and schemes. And prior to that, Shri Vikas Sharma has worked at the National Informatics Center, where was a senior member of the team handling the flagship project of regional transport offices. So with these words, with the kind of rich experience which Shri Vikas Sharma has, I hope the participants will definitely get benefited from his deliberations. And now I request Shri Vikas Sharma ji to address the participant. Thank you so much, ma'am, and also for this opportunity. And before I start, I must would like to congratulate the team of Pride, and especially Dr. Seema Kaul Singh and her team. स्पेशली एट दिस जंक्चर जब कोरोना के टाइम पे हम सब लोग कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं एंड यू नो स्किलिंग, एजुकेशन, इंटरेक्शन, ये सब कहीं बहुत हैम्पर हुआ है. और फॉर श्योर एक चीज़ बहुत अच्छी हम सब लोगों के साथ रही, और इट्स अ ह्यूमन इन्वेंशन कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर वी हैव मॉड्यूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स वेयर एक्चुअली वी कैन कनेक्ट विद पीपल एंड इंटरेक्ट, और विदाउट एनी हैसल के और विदाउट ब्रेक के हम अपने सब चाहे वो ऑफिशियल चीज़ें हों, चाहे इस टाइप के स्केलिंग प्रोग्राम्स हों, इंटरैक्शन प्रोग्राम्स हों, उनको विदाउट ब्रेक कर सकते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन द टीम ऑफ प्राइड, and I welcome each one of you who are here to attend this program. And जब मुझे ये पता लगा, when I basically received this thing, a letter from Pride की एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसके अंदर हम एक सेशन है जिस in which like we'll be talking on the subject management principles, application in public system and governance. तो जब मैंने ये जानकारी लेने का इनिशिएटिव लिया कि who will be the participants for the program, कौन लोग वो रहेंगे जिनके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे and all, because when we are on a technology platform, तो एक चैलेंज ज़रूर रहता है कि हम लोग उस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना इन पर्सन होने से होते हैं. देन आई वाज गेटिंग क्यूरियस एंड वांटेड टू नो कौन वो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ जो इस प्रोग्राम के अंदर आएंगे. तो आई गॉट टू नो कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर फ्रॉम लोकसभा, फ्रॉम सेक्रेटरीट, फ्रॉम राज्यसभा सेक्रेटरीट, और different similar organizations हैं. Then I got to know like you know they are already the torch bearers. ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर ऑलरेडी लीड कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी आइडल्स हैं अपनी फील्ड के अंदर. So who are actually the idols for management? So उनके साथ मैनेजमेंट के ऊपर बात करी जाए, उनको मैनेजमेंट के ऊपर बात करा जाए, तो ये बड़ा ही बेसिकली इंटरेस्टिंग हो सकता है. तो व्हाई नॉट, जब हम बात करें मैनेजमेंट के ऊपर, जब हम बात करें पब्लिक सिस्टम्स गवर्नेंस के ऊपर, तो क्यों ना लेट्स डू इट इन अ इंडियन वे. हम लोग सब पढ़ते हैं और आई एम श्योर हमारे साथ जो सब हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, दे हैव एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, AAA कॉन्सेप्ट के बारे में. और हमने सब ये जाना समझा है कि मैनेजमेंट कैसे है. ऑब्वियसली विद द वास्ट एक्सपीरियंस एवरीबॉडी इज कैरिंग, तो एक एक्सपीरियंस भी हम लोग कैरी कर रहे हैं, लाइक यू नो हाउ मैनेजमेंट इज बेसिकली हाउ वी कैन इम्पैक्ट इन डे टू डे आवर वर्क लाइफ, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उसको उससे हम अपने काम को और ज़्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बना सकते हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स हैव
our interaction in an Indian way. By Indian way I mean जब हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत देखने को मिलती है, like we are very much fascinated by the Greek way of management, by the France way of management, European way of management, British way of management, Western way of management. But ये अगर हम देखें पिछले कुछ दशकों से तो इस चीज को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा है, और जो हमारा भारतवर्ष है, इंडिया है, वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और हमने इस चीज को जाना समझा और पूरे वर्ल्ड ने अब इसको अप्रिशिएट करा है कि like we have the best management gurus. Likewise recently हार्वर्ड ने अभी महात्मा गांधी जी को क्राउन करा the best management guru of 20th century. That implicates like we have that thoughts, we have that management groups, और वो हमारे साथ वो पद्धति, वो प्रोसीजर्स हैं जिससे हम अपनी मैनेजमेंट को, जिससे हम लोग अपनी गवर्नेंस को मोस्ट इफेक्टिव वे के अंदर कर सकते हैं. So why not, you know, when we talk about management, when we learn about management, we learn things, but हम लोग बेसिक चीजों को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं. द इंडियन टच, द इंडियन वे को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं. तो आई थॉट व्हाई नॉट talk management and learn management and focus management in an Indian way. So I have a presentation. I think थोड़ा सा और हम उसको elaborate कर पाएंगे with the help of that. So friends, as we are discussing on this topic today, management principles application in public systems and governance, thanks to मैम जिन्होंने मेरे एक एक्सपीरियंस के बारे में आप सबसे शेयर करा. And just in short, for last more than 1.5 decades I have been working with the government of India and state government departments in various roles. और वहां पे जाके एक चीज बहुत जो देखने और जानने को मिली वो ये था कि लाइक जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वो ऑफिस तक ही सीमित नहीं. आई थिंक वो हमारे वर्क कल्चर तक, वो हमारे घर तक, बिकॉज हम बहुत बार हमें जानने सुनने को मिलता है कि लाइक द मैनेजमेंट इज बेसिकली don't basically you have to separate your personal and professional life. But what I believe is this, it's not right. Basic, क्योंकि अगर आपका पर्सनल लाइफ में कहीं कुछ चैलेंजेस हैं that will reflect in your personal life, in your professional life, and vice versa. अगर आपके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट आपके पर्सनल लाइफ में होते हैं. So that's what I have thought and invented and highlighted, like your personal and professional life both should be managed. And as in my present role as the Director and Chief Executive for Center for Strategy and Leadership, just using that opportunity to tell you about the organization, that it's a not-for-profit Delhi-based organization, and herein we are focusing on few areas for the sustainable and social and economic development of our country. So CSL works on the public policy. We are into research work. We have worked on various policies. We have worked on defense production policy. We have worked on education policy, the health policy, to name a few. And we also work on the collaborative sustainable development, where actually we are indulged in various CSR programs, also in the skilling in rural and urban both areas. Also CSR experts in the investor engagement programs, where actually, as you know, that India is not a global economy, and it's one of the favorite destination for the world when that comes to investments. India के अंदर अभी recently one of the largest investments हमने notice करा, that was by the Kia Motors, which was amounting somewhere around $10 billion. So this is areas where CSL works for an understanding. So let's start, friends, about today's discussion, today's interaction. The first thing which comes in my mind when we talk about the management and governance, द्वार बनो दीवार नहीं. फ्रेंड्स, जब भी जितना गवर्नमेंट सिस्टम को हमने जाना, सीखा, जब वहां पे काम करने के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ
और आई ऑलवेज बिलीव लाइक इट शुड बी बोथ हैंडेड. जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वो लुकआउट बोथ एंड से होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट वी आर लुकिंग ओनली एट आवर पार्ट. वी शुड एक्चुअली ऑलवेज सी द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसीवर. उस चीज को हमेशा मुझे लगा दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट इन मैनेजमेंट, कि हम द्वार बने, दीवार नहीं. आज के टाइम पे जब हम इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, गांधी जी के साथ साथ कृष्णा जी को मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है. उनकी जो सीख है वो मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर हम सब लोगों ने देखा है बहुत यूजफुल रही है. और बहुत जो मैनेजमेंट गुरुज हैं वर्ल्ड वाइड, वो उस चीज को फॉलो करके प्रैक्टिकलिटी देख चुके हैं कि हाउ इट विल इफेक्टिवली चेंज द परफॉर्मेंस एंड द माइंडसेट ऑफ मैनेजमेंट. फ्रेंड्स, जो हमारी काफी वेदास और काफी होली बुक्स अगर हम बात करें, तो वो कहीं ना कहीं सूनर और लेटर हमारी जो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है वहां पे बनाई गई, और उसके अंदर हमें मैनेजमेंट हो, लाइफ हो, प्रिंसिपल्स हो, एथिक्स हो, उन सब के बारे में जानने समझने का मौका मिला और दिया गया. जब हम बात करते हैं गीता की, तो ये भगवत गीता जो हमारी एक होली बुक है, वो सबने जाना और समझा, और ये देखा गया कि दिस इज द बुक की जो ना सिर्फ आपको सही लाइफ कैसे जीना है, क्या प्रिंसिपल्स आपके मैनेजमेंट में होने चाहिए, वर्क फोर्स के अंदर आपका क्या होना चाहिए, व्हाट इज योर धर्म, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सबको बहुत ही डिफाइंड वे में बताया गया है. उसी का एक जब हम बात करते हैं द्वार और दीवार की, तो एक वाक्य बड़े नोटिस में आता है जब हम याद करते हैं. आई थिंक सबने गीता पढ़ा है, देखा है, बहुत फेमस महाभारत सीरियल रहा. और इस बीच में जब हमारा लॉकडाउन को रहा, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, कि हम सबके लिए रामायण और महाभारत का दोबारा से टेलीकास्ट करा गया, तो आई थिंक वो दोबारा से सबके माइंड्स में वो चीज़ दोबारा से रिमेम्बर हम लोग कर पाए. तो उसका एक वाकया मेरे माइंड में आता है जब हम कंपेयर करते हैं. अभी कुछ दिन पहले आई वॉज इन चेन्नई इन सम कॉलेज. वहाँ का एक यूनिवर्सिटी है जो कि 108 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है. तो वहाँ पे व्हेन आई वाज टेकिंग अ सेशन, तो मैंने लोगों से, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, उनसे शेयर करा कि राम की जब हम बात करते हैं तो राम सिंबलाइज करते हैं जो कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाले, जो कि एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करने वाले, एक छवि या एक पोस्चर ऐसा क्रिएट करा गया है. और जब हम बात करते हैं कृष्णा की, तो कृष्णा को ऐसे पोर्ट्रे करा गया है कि लाइक हु फॉलोज द रूल बट ही विल आल्सो बेंड द रूल व्हेनेवर ही विश टू अचीव हिज गोल्स. सो दोनों का एक अलग तरीके से प्रेजेंट करा गया. व्हेन आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि आप क्या बनना चाहेंगे, आप राम बनना चाहेंगे या कृष्ण बनना चाहेंगे, तो एक बड़ा फनी कुछ लोगों ने बोला, और बड़ा मुझे आई थिंक मॉडर्न सिनेरियो के अंदर बड़ा फिट बनता है, कि सबने बोला हम तो रामा कृष्णा बनना चाहेंगे. तो एक्चुअली दिस इज द थिंग कि व्हाट मैनेजमेंट टेल्स यू, व्हाट गवर्नेंस टेल्स यू, लाइक जब आप बात करते हैं पॉलिसीज की, जब आप बात करते हैं पब्लिक सिस्टम्स की, तो वहां पे हम लोग रूल्स को फॉलो करें. बट आई थिंक हमें रामाकृष्णा बनने की जरूरत है कि हम एथिक्स प्रिंसिपल्स के साथ उसको फॉलो करें. बट हम लोग उसको उसके साथ साथ जरूर ये इंश्योर करें कि हमारे गोल्स कैसे अचीव हो रहे हैं. और उसके लिए अगर हम उसको कहीं बेंड करना पड़े, उसके लिए अगर कहीं हमें उसके अंदर कुछ ट्वीकिंग्स लाने पड़े, कुछ चेंजेस लाने पड़े, तो आई थिंक हमें उसके अंदर दीवार नहीं बनना चाहिए. दूसरी स्लाइड में अगर मुझे एक और पॉइंट फ्रेंड्स लगा, मैनेजमेंट के अंदर ऑलवेज दिस इज एक चैलेंज हमारे सामने आता है अबाउट द विजन. आई बिलीव व्हेन द व्हाई इज क्लियर, हाउ इज इजी. व्हेन वी नो द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइजेशन, और जब हम उसके अंदर क्लियर हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के क्या गोल हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे, उसको मिशन और विजन क्या है उनका, देन उसको कैसे अचीव करना है, उस तक कैसे पहुंचना है, ये बहुत इजी हो जाता है. फ्रेंड्स, एक जब
सीता जी को किडनैप करा गया रावण द्वारा, तो सिर्फ इतनी एक इंफॉर्मेशन श्री राम जी के पास थी कि वो उनको साउथ साइड के अंदर ले जाया गया है। तो राम और लक्ष्मण उसी दिशा के अंदर भागने लगे सीता जी को वापस लाने के लिए, देखने के लिए कौन उनको ले गया है नॉन। तो जब वो जा रहे थे, ना कुछ खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना सो रहे थे, एक वुमेन ने उनको रोका और उनको बोला उनकी हालत देखते हुए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप रुके, थोड़ा सा पानी लें, थोड़ा खाने को लें, थोड़ा वेट करें, क्या हुआ है, आप क्यों इतने टेंस लग रहे हैं, क्या इशू है। तो उन्होंने उनको बताया कि मेरी वाइफ को ऐसे कोई अबडक्ट करके ले गया है और मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता लगा कि वो इस डायरेक्शन में गए हैं, तो मैं भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ। तो उन्होंने उनको बैठाया, उनको पीने को पानी दिया, बैठने को जगह दी। एंड जब उन्होंने देखा, उन्होंने उनकी हालत से कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो कुछ खाने का सामान लेके आई और आउट ऑफ लव वो उनको जो जब देने लगी, तो उन्होंने कहा कहीं इसके स्वाद से उनको परेशानी ना हो, तो शी वुड टेस्ट इट। वो टेस्ट करके देख रही थी कौन सा स्वादिष्ट है और वही उनको ऑफर कर रही थी। ये जब लक्ष्मण ने देखा तो वो राम को दे रही थी, राम भी उसको खा रहे थे। जब लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण को लगा कि ये तो गलत है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, एंड ही वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। जब उनको ऑफर करा गया लेडी द्वारा, तो उन्होंने उनको रिफ्यूज करा लेने के लिए कि नहीं, ये आप कैसे ले सकते हैं, और मैं आपको बहुत समय से देख रहा हूँ, और कैसे आप जो श्री राम है, जो अयोध्या के राजकुमार हैं, इतने बड़े संपदा के राजकुमार हैं, इतने बड़े आलीशान महलों में और इस तरीके से रहे हैं, उनको आप इस तरीके से दे रहे हैं। उनका तो एक प्रोटोकॉल हुआ करता था, जब खाना होता था तो पहले इस तरीके से होता था, पहले सूप आता था, फिर खाने को आता था, फिर डेजर्ट आता था। तो वो उनका तो बड़ा लैविश तरीके से होता था, आप कैसे दे रहे हैं, आप जानते नहीं हैं। तो राम ने उनको रोका और राम ने कहा, देखिए, इट्स अबाउट अ विजन, इट्स अबाउट अ परसेप्शन दैट यू हैव क्रिएटेड। ये लेडी, हम लोग सब जिस अटायर के अंदर हैं, हम लोग जंगल के अंदर हैं, हम सब ने वेपन्स लिए हुए हैं, उसके बावजूद भी इस लेडी ने एक जंगल में, एक सुनसान जगह के अंदर हमें रोकने का प्रयास किया, हमें रोका, और ये जानते हुए, ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं हम लोग वरिड हैं, कहीं ना कहीं हम लोग शायद परेशान हैं और ये हमारी मदद कर सकती हैं। तो शी इज काइंड, आपको इनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने हमें बैठाया ही नहीं, समय नहीं दिया, हमें ऑफर करने को दिया। क्या पता वो उनके पास उतना ही खाने का रहा हो, क्या पता उनके पास ये उनके लिए चीजें हो जो उन्होंने प्रिजर्व करी हो, बट वो हमें ऑफर उस चीज के लिए कर रही हैं। भाई हमने कोई उनकी फाइल तो निकाली नहीं है, कोई उनको टेंडर तो दिया नहीं है, कोई और तो उनकी मदद करी नहीं है किसी सर्टिफिकेट को देने में, तो क्यों वो करेंगे? वो तो नहीं जानती है कि हम राजकुमार हैं, हम महाराज हैं, हम कहाँ से आए हैं। बट बिकॉज शी इज काइंड इनफ कि वो मैनकाइंड को देखते हुए, हमें एज ए ह्यूमन बीइंग देखते हुए, जरूरतमंद देखते हुए, जरूरत में देखते हुए, भूखा प्यासा देखते हुए हमारी मदद कर रही है। सो इट्स अबाउट, राम सेड, अगर हम इसको एनालाइज करें इस एपिसोड को, तो राम ने इसके अंदर एक बहुत अच्छा लेसन हम सब लोगों को दिया कि सिचुएशंस को परसेप्शन के साथ देखना बहुत जरूरी है। हमें ये जरूर देखना जरूरी है कि जब भी कोई एक्शन हो रहा है, उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, उसके पीछे क्या इश्यूज हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस परसेप्शन से हम लोग उसको देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम जिस विजन से उसको देख रहे हैं, सामने वाला भी उसको उसी विजन से कर रहा है। मे बी शायद देयर इज अ गुड जेस्चर बिहाइंड हिज एक्शन फॉर अस। सो राम gave a lesson कि like we have to ensure, we have to see the perception कि उनके लिए उसके अंदर क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आए तो आई थिंक द नेक्स्ट mantra for management is opportunities are never lost, they are taken by those who are ready. I believe ये अक्सर देखा गया, लोगों ने बोला कि एक अपॉर्चुनिटी आई थी बट मैं उसको नहीं इनकैश कर पाया और मैं इसको कर सकता था बहुत अच्छे से, और
बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, बहुत बार ऐसे रीजन दिए जाते हैं, बट आई बिलीव दैट opportunities are never lost. They are always waiting for us. We have to be prepared for the opportunities. हमें आजकल हम बात करते हैं बहुत स्किलिंग की अंदर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को एड्रेस करते हुए स्किल इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लॉन्च करा और ये इंश्योर करा दैट एवरी person residing in our country should be skilled enough to actually are skilled enough to actually ready for the opportunity. And एक चीज बहुत देखी गई जब हम मैनेजमेंट गवर्नेंस की बात करते हैं, we face lots of challenges. I think what's the leader? What is the management guru? What is the right person? What is the expert of governance? That we have to convert challenges into opportunities. हमें challenges को opportunity में create करने के लिए vision लेके चलना चाहिए. Friends, कृष्णा ने ये प्रूव करा जब हम बात करें महाभारत की कि अगर राइट स्ट्रैटेजी के साथ और राइट प्रिपरेशन के साथ अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के अंदर जाते हैं, किसी भी टास्क को लेते हैं, सो आप चाहे आपकी स्ट्रेंथ उस क्लास की ना हो, चाहे आपके पास कैपेबिलिटी वैसी ना हो, लेकिन स्टिल with the right strategies and with the right approach and obviously having an approach of converting challenges into opportunity, you will be achieve the unachievable. कृष्णा, जब हम बात करें महाभारत की, तो कृष्णा अर्जुन के साथ रहे और दुर्योधन अपनी टीम के साथ उस महाभारत को लड़ रहे थे. तो कृष्णा और की जो टीम थी, जो अर्जुन के साथ थी, वो कई मायनों के अंदर कौरवों की टीम से शायद मेल नहीं खाती थी और उनकी चाहे बात करें एक्सपर्टीज की, चाहे उनकी बात करें टीम साइज की, तो बहुत जगह पे वो अगर हम कंपेयर करें तो वो उनसे कहीं गुना ज़्यादा नीचे लेवल पे हम लोग देखते थे. बट फिर भी राइट स्ट्रैटेजीज के साथ, क्योंकि कृष्णा ने उनको अप्रोच करा और हमेशा एक मोटिवेशनल की तरह वो पांडवास को अप्रोच करते रहे और पांडवास को उन्होंने मोटिवेट किया एंड इंस्पायर करा. आप देखें जब बात होती थी, जब हम बात करते हैं कि विजन और मिशन की, तो जो कौरवों के पास जो विजन था और जो मिशन था उनका उस चीज के लिए, वो ये था कि उनको इस चीज को प्रिजर्व करना है. जो मटेरियल्स उनके पास हैं, जो राजघराने उनके पास हैं, जो प्रॉपर्टीज उनके पास हैं, उनको बचाना है. जबकि पांडवास के पास जो रीजन था, जो कृष्णा द्वारा एक क्रिएट करा गया और कृष्णा द्वारा उनको मोटिवेट करा गया, उनको बताया गया कि दैट आपकी जो फाइट है, इट्स नॉट फॉर कमर्शियल मटेरियलिस्टिक थिंग्स. आपकी फाइट एथिक्स के लिए है, आपकी फाइट सत्य के लिए है, आपकी फाइट धर्म के लिए है. और उनकी पूरी टीम और उनका पूरा जो आर्मी था, वो उस विजन के साथ थी कि हमें धर्मा को बचाना है, हमें एक सत्य की लड़ाई लड़नी है. सो द एफर्ट्स वाज कंसोलिडेटेड. And we compare about when Duryodhana's, the effort was not consolidated because it was for self-benefit. So when it's a self-benefit, so your team gets scattered. जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक जो विजन हम अपनी टीम को हमें देना चाहिए और जो हमें मिशन उनको देना चाहिए, that should be the vision जिससे सब लोग कंसोलिडेट हो पाए, जिससे सब लोग एक फोर्स के साथ, एक आर्मी के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए आगे जा पाए. ना ही कि सेल्फ अटेनमेंट गोल को हम लोग फॉलो करें, इससे कि सब स्कैटर्ड वे में काम करें. बिकॉज इन दैट वे everybody is focusing on their win, everybody is focusing on their achievement. So when we are focusing on our achievement, the achievement for the organization वो शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर खो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट जो फ्रेंड्स मुझे लगा, दैट we should adopt that authority से पहले उठाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम जब बात करते हैं अथॉरिटी की, जब हम मैनेजमेंट रोल्स में आते हैं, हम गवर्नेंस रोल के अंदर आते हैं,
तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इंश्योर करें कि लाइक वो लीडरशिप, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेना है। फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो हमें कई वाक्य ऐसे देखने को मिलते हैं, कई ऐसे, जब हम अपने पुराणों में जाते हैं, जब हम महाभारत और गीता को जब पढ़ते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लीडरशिप इज कितना इंपॉर्टेंट है वो मैनेजमेंट और जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं उसके अंदर। साथियों, दो तरीके के तरीके बताए गए हैं अगर हम महाभारत को, गीता ग्रंथ को देखें, कि एक काम करने के लिए एक वर्क फोर्स पे दो तरीके की स्ट्रैटेजीज यूजुअली फाइंड करी गई है, एंड विच इज द राइट वन एंड विच इज द रॉन्ग वन। सबसे पहली जो है वो कहा गई है, जिसको कहते हैं हम गुड स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें, उसके अंदर ये कहा गया है कि वर्क फोर्स जहां पे एक लीडर हो, दैट लीडर शुड बी हैविंग अ विजन, अ मिशन, और एक क्लैरिटी हो, एक गोल्स के साथ जो काम करें। देयर शुड बी अ पॉजिटिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी प्रिंसिपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा एक जो कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सब स्कैटर्ड वे में है, सब अपने सेल्फ गोल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो जिनके अपने सेल्फ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जब एक बिहेवियर कंपैरिजन करा गया, तो देखा गया जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सबका गोल, सबका अचीवमेंट प्लान्स, सबके ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, वो हमेशा ग्रोथ लेवल पे बहुत हाई रहे एज कंपेयर टू दैट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सब अपने इंडिविजुअल गोल को फॉलो कर रहे हैं। सो आई थिंक एक लेसन हमें वहां से लेना चाहिए, दैट जो भी गोल बनाए जाएं और जो भी स्ट्रैटेजीज उनको फॉलो करने के लिए बनाए जाएं, that should be for the organization, not for the individual. जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो एक बात हमेशा हमें जानने को मिलती है कि दैट a leader should be one, जो not only one set of person के लिए, rather it should be for everyone. Leader should be available. महाभारत की अगर हम एक एपिसोड को देखें, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उससे पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए मदद करें और हमारी साइड से लड़ें। तो कृष्ण ने दोनों की बात को जानते हुए, जबकि वो जानते थे कि एक का युद्ध धर्म के लिए है और एक का युद्ध धर्म के विरुद्ध है, बट फिर भी उन्होंने उनकी बात को मानते हुए दोनों का साथ दिया। अर्जुन के साथ वो खुद रहे, यस दिस प्लेज के साथ कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, सिर्फ आपके साथ रहूंगा, मेरी प्रेजेंस रहेगी। और दुर्योधन को उन्होंने अपनी पूरी आर्मी दे दी, बट उन्होंने सबको एक मौका दिया परफॉर्म करने का। दिस इज आई थिंक द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन दैट कम्स टू द मैनेजमेंट। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर, कि वो हर एक अपने सबॉर्डिनेट्स को, हर एक अपने एम्प्लॉय को, हर एक अपने कोलीग को एक राइट अपॉर्चुनिटीज दे टू ग्रो। बिकॉज एज अ लीडर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट इक्वालिटी ऑन द वर्क फोर्स। जिसका एक लेसन हमें इस एपिसोड से मिलता है। कृष्ण ने एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी दोनों को कि आप दोनों परफॉर्म करें, आप दोनों में से जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको सिंहासन दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन, एंड इफ यू वांट टू गो फार, गो एज अ टीम। फ्रेंड्स, जब हम रामायण का एक एपिसोड देखते हैं, तो रावण जब अपना लास्ट ब्रेथ ले रहे थे, तो उन्होंने राम जी से बोला कि भाई राम, ऐसा क्या था, मैं तो आपसे ज्यादा बल के अंदर, दल के अंदर, प्रॉपर्टी मेरे पास सबसे ज्यादा, कारें मेरे पास सबसे ज्यादा,
लोग मेरे पास, आईटी प्रोफेशनल मेरे पास, ऐसा क्या रीजन रहा कि फिर भी मैं हार गया, फिर भी आप मेरे से जीत गए? तो राम ने कहा कि आप बताएं, आप तो इतने ज्ञानी हैं, इतने स्कॉलर हैं, इतने इंटेलेक्ट हैं, भाई क्या रहा, आपको क्या लगता है क्या रीजन रहा हो? तो रावण ने कहा कि मेरे हिसाब से एक रीजन उसके अंदर जो सबसे बड़ा रहा वो ये कि आपकी टीम आपके साथ थी और मेरी टीम मेरे साथ नहीं थी। जैसा कि हम सब ने रामायण बहुत अच्छे से देखा है, जो रावण के ब्रदर थे विभीषण, वो उनकी टीम में नहीं रहे थे और जिसके कारण से राम को डिफीट का सामना करना पड़ा। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट। लाइक अगर हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, हमें अपने गोल्स को कम समय में और अप्रोप्रिएटली अचीव करना है, देन वी शुड बिलीव ऑन आवर टीम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड लीडर कि वो किसी भी गोल को सेट करने से पहले उसके लिए पहले खुद श्योर हो, उस गोल को के लिए उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्लस माइनस सब लोग सब अपने लेवल के ऊपर अपनी रिसर्च से, अपने सर्वे से उसको आइडेंटिफाई करें। एंड वंस द डिसीजन हैज बीन टेकन, देन पूरे कन्विक्शन के साथ वो उसमें आगे बढ़े। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, एक देयर इज अ सेइंग दैट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। व्हाई नॉट लीडरशिप बिगिंस फ्रॉम वन सेल्फ? आई थिंक मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लीडर है, हु इज लीडिंग द ऑफिस, हु इज लीडिंग द वर्क फोर्स, आप सब लोग जिस मैनेजमेंट रोल में हैं, वी शुड एंश्योर दैट वी हैव द कन्विक्शन फॉर आवर आइडियाज। फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि अगर हम बहुत सर्वेज देखें और काफ़ी मैनेजमेंट अगर चीज़ों को नोटिस करें, जो एपिसोड्स एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, आइडियाज वही फ्लोरिश हमेशा हुए जिसके अंदर उनके लीडर्स ने कन्विक्शन दिखाया। बिकॉज ऑलवेज व्हेन यू सी द आर्मी, द सोल्जर ऑलवेज फॉलोज द कमांड ऑफ देयर कमांडर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो भी हम स्ट्रैटेजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएं, वो पूरी कन्विक्शन से बनाएं और ये इंश्योर हो कि जो हमारे लीडर हैं वो उसको पूरी कन्विक्शन से फॉलो करें। गो टू द नेक्स्ट साइड। हाउस ऑफ जोश फ्रेंड्स, सबने बड़ा फेमस हुआ, हम सबने वो मूवी देखी, एंड आई थिंक सबके जबान पे आजकल ये चीज आ गई, हाउ द जोश। एंड बट एक्चुअली दिस इज द वेरी करेक्ट थिंग। एक मुझे बड़ा एक जब मैनेजमेंट का हम लोग बहुत जब पढ़ते हैं अलग अलग बुक्स, आर्टिकल्स एंड ऑल, तो एक स्टोरी फ्रेंड्स पढ़ने को मिली जिसने मुझे बहुत मोटिवेट करा कि लाइक इट इज वेरी एसेंशियल कि हमारे आजकल बहुत हम स्ट्रेस का बहुत स्टोरी सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वर्क फोर्स के अंदर लोग बहुत स्ट्रेसफुल हैं, लोगों को बहुत स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Friends, this is very important, like what is the atmosphere leader should create, a management guru should create in their workforce. एक स्टोरी मेरे पढ़ने को आई, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद यू। देयर इज अ वेरी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिचुएटेड इन अ पार्ट ऑफ एन अमेरिका, न्यूयॉर्क के अंदर, और उन लोगों ने एक सर्वे करा जो उनको ये चीज पता लगा। वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत फ्लोरिश कर रहा था, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री था, और एम्प्लॉइज अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस सब लोग दे रहे थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरीथिंग वाज वेल। देन अ न्यू एम्प्लॉय केम इन, ही सेड हम और अच्छा कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा और बदलाव करना चाहिए, ये जो चीजें, जो प्रोसीजर्स, जो रूल्स हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं वो एजेस से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। But the boss said like, but हमें क्यों करना है? We are achieving the targets, we are going good, my staff is happy, everybody is happy, the atmosphere is good. He said no, but you can achieve more. क्यों ना हम इसको कुछ एक चेंजेस ऐसे कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में करें जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन और फ्लरिश हो। He said okay, let's do it. तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेंज उन्होंने करा। उन्होंने लाइक पहले जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप था
वो बहुत ही पॉजिटिव था। किसी को अगर अपने कुलीग से कुछ बात करना है तो वो बहुत इजीली उसके डेस्क पे जाते थे, उनसे बात करते थे। किसी को आपस में कुछ शेयर करना है, चाहे वो पर्सनल बेसिस पे ही क्यों ना हो, वो शेयर करते थे। और बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सब काम कर रहे थे। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से पूछने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। बट जो एक चेंज हुआ उसके अंदर, वहां पे कैमराज, सीसीटीवी जो कैमरा है वो लगा दिया गया, और ये एक रूल निकाल दिया गया कि सबको अपने अपने डेस्क पे रहना है। आपको सिर्फ लंच का टाइम मिलेगा, 1 से 2 का, 2 से 3 का, और उसी समय पे आप अपने फ्रेंड से इंटरेक्शन करें, वो भी लंच एरिया में करें। अदरवाइज आप बॉदर ना करें, क्योंकि व्हाट वी बिलीव कि आपका जो 8 आवर 10 आवर्स का जो यहाँ पे वर्किंग टाइम है उसको आप पूरा परफॉर्मेंस पे यहाँ पे दें, वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन से आप यहाँ पे आप दें। एक दूसरे को बॉदर करके वो टाइम कहीं हम लोग मिस यूटिलाइज ना करें। चीजें चलती रही। आफ्टर 6 मंथ जब उन्होंने देखा, एनालाइज करा, तो दो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगी। बट उनको कॉन्फिडेंस दिया गया वो न्यू टीम से कि नहीं, आई थिंक ये तो एक चेंज का शुरुआत है। आप देखिएगा ये जितना स्पाइक डाउन जा रहा है उतना ही ज्यादा स्पीड से अप जाएगा। और 6 महीने गुजरे, उन्होंने फिर दोबारा से बोला कि अभी भी वही चीजें हैं, क्यों ये अभी भी नीचे जा रहा है। उनको फिर दोबारा से बोला गया। कुछ समय और बीतने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनको काफी लॉसेस हो रहे हैं और उनकी टीम उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, देन उन्होंने कहा नहीं, देयर इज सम इशू। ही कॉल्ड हिज टीम फॉर अ board meeting, for a team meeting, that what is the problem for last 1.5 years, 2 years, what is the problem, क्यों जो हमारी टीम इतना परफॉर्म करती थी, क्यों हमारी टीम जो इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी, अब ऐसा क्यों होने लगा है। तो उनके टीममेट ने उनको बताया कि सर, इससे पहले वी वर वेरी पॉजिटिव। हम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम होता था, हम लोगों को कभी कोई चैलेंज होता था, हम लोग हमेशा उसको आपस में मिलकर सॉर्ट आउट करते थे, हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो हमें देयर वाज अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा होता था, चाहे उसके पर्सनल फ्रंट पे ही क्यों ना हो, एवरीबॉडी वाज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट दैट टीममेट। बट नाउ सबको इंश्योर कर दिया गया है, देयर सीसीटीवी कैमराज। अगर हम हिलते हैं तो हमारे इंसेंटिव्स कट हो जाते हैं, हमारी सैलरी इफेक्ट्स होती है, हमें नोटिसेज आ जाते हैं। तो हम लोग वी आर इन वेरी मच प्रेशर, हम लोग उस ओपननेस से काम नहीं कर पा रहे। तो ही सेड व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट। तो दे सेड कि आई मीन द सॉल्यूशन इज दैट सर, दैट देयर शुड बी अ पॉजिटिविटी। तो उनको वो चीज लगा, और उन्होंने वो सारा जो नया जो सीसीटीवी और जो रूल्स एंड रेगुलेशन था वो दोबारा से पूरा रिज्यूम, पुराने पे वो लोग गए, और फिर उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि सबकी परफॉर्मेंस वापस आने लगी। तो that is very important, I think, when we talk about the management at workforce. Like, there should be a positivity, there should be a leader should set the right tone for their employees. वो एक जोश, वो एक पॉजिटिवनेस एटमॉस्फेयर में होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर हम कृष्णा को देखें तो एज अ लीडर उन्होंने अपनी टीम में, चाहे वो उनकी बचपन की टीम क्यों ना रही हो, चाहे वो महाभारत के टाइम पे हम क्यों ना बात करें, जो सबसे बड़ा एक युद्ध हुआ, उन्होंने हमेशा अपनी टीम को 2 लेसन्स दिए। वन, एज अ लीडर ही वाज ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन। किसी को, चाहे वो दुर्योधन को युद्ध के लिए उनकी मदद मांगने जाना हो, चाहे वो अर्जुन को जाना हो, चाहे वो द्रौपदी को उनसे बात करनी हो, चाहे सुदामा उनके फ्रेंड को उन तक पहुंचना हो हेल्प के लिए, as a leader he was always available to listen, always available to help, always available to find solutions for the challenges of their subordinates, for their friends, for their colleagues. So this one lesson we have to uh, learn from Krishna, from Mahabharata. Like, as a leader, one should be always available for the challenges, one should always available for their employees, for their subordinates, for their colleagues. Second thing, आप देखें हमेशा जो छोटे से छोटा जो चैलेंज रहा हो, कृष्णा ने उसको आंसर करने की कोशिश करी एज अ गुड लीडर। वो भी एक लेसन वो वहां से हमें देते हैं। छोटा सा अगर हम एक एपिसोड देखें तो जब कृष्णा के, जब वो छोटे थे, अपना गांव में रहते थे,
तो उनके जो फ्रेंड सर्कल में लोग थे, बिकॉज वो तो वहाँ के अंबानी के बेटे थे, तो उनको तो ना घी का, ना मक्खन का, ना किसी और चीज का, ना दूध की कोई कमी थी, बट उनके साथ जो दोस्त थे और वो जरूर कहीं ना कहीं इस चीज से वंचित थे, और उन लोगों को क्योंकि उनका वो फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि वो सब चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती, तो उन्होंने कृष्ण को जब ये लगता था, तो कृष्ण चाहे वो उनके पापा के फ्रेंड हो, मम्मी के फ्रेंड हो, या उनके अपने घर वहां से बटर चुरा के, घी चुरा के और चीजें चुरा के अपने सब फ्रेंड्स को इक्वली बांटते थे। सो वहां पे उन्होंने एक लीडरशिप ये रोल ये दिया कि लाइक फॉर माय कुलीग्स, अगर उनको कोई चैलेंज है, अगर उनको कोई रिसोर्सेज मुझे पहुंचाने हैं, तो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर कि मैं उसको पहुंचाऊं एंड इक्वली उन सब में शेयर करूं, और उनको एक इक्वालिटी का एक लेसन दिया जाए, और उनको ये लेसन दिया जाए दैट आई एम ऑलवेज विद यू। सो आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रिएट द राइट जोश इन योर टीम। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये बहुत ही परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बहुत एड्रेस करता है हमारे वर्कफोर्स की। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन वी स्टॉप लर्निंग, वी स्टॉप ग्रोइंग। फ्रेंड्स, this is again a very important thing for management. अगर हम सीखना छोड़ देंगे तो हम बढ़ना छोड़ देंगे। विवेकानंद जी का एक एपिसोड मुझे याद आता है, जब उनके पास उनकी जब हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो उन्होंने उसके अंदर लिखा कि एक शख्स उनके पास आए और बोलने लगे कि सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हर पार्लियामेंट सेशन को अटेंड करता हूँ, पूरा आता हूँ, नोट बनाता हूँ, हर पॉलिसी पढ़ता हूँ, सब देखता हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, सुबह 9 से 10 ऑफिस में रहता हूँ, संडे के दिन भी काम करता हूँ, सैटरडे के दिन भी काम करता हूँ, फिर भी मैं सक्सीड नहीं हो पा रहा हूँ, सक्सेस नहीं आ पा रही है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट इज द इशू? तो विवेकानंद जी मुस्कुराए और उनको कहा कि भाई ये मेरा जो पेट है, मेरा डॉग है, आप इसको लेके जाइए, आप थोड़ा सा इनको घुमा के लाइए, और जब तक आप वापस आते हैं तो लेट्स सी, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, फॉर योर प्रॉब्लम। ही सेड ओके, दैट्स वंडरफुल। वो उसको लेके गए और पूरा घुमाने अपना ले गए। जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि भाई व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सो एग्जॉस्टेड? उन्होंने कहा सर ये आपके जो डॉग हैं, ये तो भाई कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी यहाँ थे, कभी वहाँ थे, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो इनके पीछे पीछे था, और बस मैं इसलिए थक गया, कुछ ज़्यादा घूम ही नहीं पाया, बस आसपास ही यहीं पे होके आ गया। तो विवेकानंद जी ने कहा कि लुक, दिस इज द थिंग, you one learn two lessons from this. One, कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है दैट आपका लर्निंग उस लेवल तक हो गया है दैट यू कांट लर्न मोर। आपको हमेशा अपनी लर्निंग को ओपन रखना है इन एवरी एस्पेक्ट। कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क फ्लोस एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी टास्क इज इंपॉर्टेंट। जब आपको ये टास्क दिया गया, तो उसके लिए आपको एक लर्निंग लेनी थी कि ये डॉग है, इसका नाम क्या है, ये कैसे करता है, कौन सी जगह जाना पसंद करता है, क्या चीज़ है। आपने वो लर्निंग ही नहीं ली। दूसरा, आपने एक चीज को एड्रेस नहीं करा कि अबाउट अ विजन। ऐसे ही जैसे ये डॉग कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, एक चीज को फोकस नहीं कर रहा है, वैसे ही आपका भी शायद फोकस आपके गोल के नहीं है। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन यू हैव टू इंश्योर कि क्या उसके लिए राइट स्किल सेट हमारे पास है। क्या ऐसा तो नहीं हम आईटी वाले को अकाउंट के लिए यूज कर रहे हैं और अकाउंट वाले को आईटी के लिए यूज कर रहे हैं। सो वी शुड नो द स्किल सेट, और उस स्किल सेट के अकॉर्डिंगली हमें वर्क एलोकेशन करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेनेवर एक राइट लीडर के लिए, एक राइट मैनेजमेंट गुरु के लिए, कि व्हेनेवर इट्स नीडेड फॉर आवर टीम, फॉर रीस्किलिंग, फॉर अपस्किलिंग, उस चीज को हमेशा एज ए लीडर वो एड्रेस करें और इंश्योर करें कि जो भी टास्क हम जिस भी पर्सन को दे रहे हैं, उसके लिए वो राइट स्किल्ड हो, उसके लिए वो राइट पर्सन हो, जिससे वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट पर्सन बन पाए एंड इफेक्टिवली उस चीज के लिए, उस टास्क के लिए काम कर पाए। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव। हम लोगों को एक लेवल पे आने के बाद लगता है कि लाइक
we have learned a lot, and I think this is not the time that we should learn. But I think stop learning means stop achieving. और बहुत ज़रूरी है कि हमेशा एक लर्नर बन के काम करें, और एज ए लीडर एक रोल मॉडल जरूर सेट होना चाहिए. एज आई अर्लियर सेड, लाइक व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ द सेइंग द चैरिटी बिगिंस एट होम, क्यों ना हम इस चीज़ को करें कि लर्निंग भी लीडर से ही की शुरुआत हो. हु इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज द मेंटर फॉर द आइडल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन. फ्रेंड्स, अगर हम विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर हैं, वर्ल्ड रिनोड चेस प्लेयर रहे, इट्स ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर अस एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. वो हमेशा एक सेइंग कहते थे कि जब भी वो कोई भी मैच अपना जीतते थे, तो उनका हमेशा एक सेइंग रहता था. वो ये कहते थे, मैं इसलिए नहीं जीता हूँ क्योंकि मैं अच्छा करता हूँ या मुझे अच्छा आता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ जीतता हूँ क्योंकि मेरा जो ओपोनेंट है वो कहीं कुछ मिस्टेक कर देता है और उससे मैं सीख लेता हूँ. तो आई थिंक वो अप्रोच लेके हमें सबको चलना चाहिए, दैट वी शुड ऑलवेज up and open for learning. Go to the next slide. A wise man once said, there are no shortcut to success and no substitute for hard work. Since this is again, we have to learn from this quote that shortcuts सक्सेस के कभी नहीं होते हैं. सक्सेस के लिए हमें अपने बेस्ट एफर्ट्स हमेशा देने हैं. और जब हम महाभारत की बात करें, अगर देखें तो बहुत जगह ये उल्लेख करा जाता है कि जो 14 साल जो वनवास रहा पांडवास का, तो जब कृष्ण उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बोला कि भाई हम कृष्णा बहुत परेशान है और ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, हमारी सब चीज छूट गई है, अब हम कैसे राजपाट का हमें पता नहीं है, हम लोग जो हमारे वेपन्स चलाना, ये सब चलाना, जो यही राजा का काम होता है कि राजपाट कैसे हो, और वो इंश्योर रहे, प्रैक्टिस करता रहे कि जब भी उनके क्षेत्र के ऊपर, उनके घर के ऊपर, उनके स्टेट के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट वो उसके लिए प्रिपेयर हो. तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो 14 साल आपको मिले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आपको इसके लिए ये समय मिला है कि आप प्रिपेयर हो सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके. और जो हमने देखा तो वो 14 साल चाहे अर्जुन को अपनी फील्ड के अंदर करना हो और लोगों को करना हो, तो उन्होंने वो प्रिपेयर अपने आप को करा. और उस 14 साल में वो इतने प्रिपेयर हुए कि जब महाभारत का युद्ध आया तो वो अपनी अपनी चीज के अंदर बहुत ही निपुण थे. अपनी अपनी चीज के अंदर वो उस लेवल को अटेन कर चुके थे कि वो अपने लेवल पे टीम्स को लीड कर पाए. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हार्डवर्क करने की बहुत जरूरत है. खुद से एक लीडर को जरूर ये प्रेजेंट करने की जरूरत है दैट ही इज द मॉडल. ही इज नॉट गोइंग फॉर शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस. ही इज नॉट सेइंग नो टू हार्ड वर्क. एंड व्हेन ही इज डूइंग सो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा लीडर एक मॉडल की तरह, एक रोल मॉडल की तरह होता है. और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए कि हम वो एक रोल मॉडल सेट करें और अपने टीम को हमेशा इस चीज के लिए फोकस कराएं कि लाइक व्हेन आई कैन डू द हार्ड वर्क, व्हेन आई एम नॉट गोइंग फॉर शॉर्टकट्स टू सक्सेस, देन यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर सो. एंड व्हेन आप इस चीज को बोलेंगे एज अ लीडर, सो दे विल accept that thing because you have attained that level, you are the leader. So हमेशा रास्ते का पता वही बता सकता है जो उस रास्ते से होकर गया है. और वो आपके कुलीग वो जानते हैं कि आप इसी रास्ते से होके गए हैं. और अगर आप इसके बारे में कहाँ गड्ढा है, कहाँ मोड़ है, कहाँ पे छाया है, कहाँ पे बारिश है, आप बता रहे हैं, तो आई थिंक यू विल बी द राइट पर्सन टू टेल देम. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. एंड मुझे लगा कि when we talk about management, तो हम लोग एक उस पर्सपेक्टिव से हमेशा मैनेजमेंट को देखें, which is the Indian side of management. We always think management as a bookish knowledge जो हम लोगों ने पढ़ी है, देखी है, जो हम लोग सुनते हैं, जानते हैं. बट आई थिंक जब हम रियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं, जब हम वर्क फोर्स पे आते हैं, तो मैनेजमेंट का रूल बहुत डिफरेंट हो जाता है. एंड आई थिंक एंड आई बिलीव कि
let's tackle the human in a human way, not in a bookish way. जब हम बात करें ह्यूमन से इंटरेक्ट करने का, जब हम बात करें गवर्नेंस की, जब हम बात करें इंटरेक्शंस की, इट शुड बी द ह्यूमन वे, एंड दिस इज व्हाट द इंडियन वे ऑफ डूइंग द मैनेजमेंट. जब हम यूरोपियन मैनेजमेंट, ग्रीक मैनेजमेंट, फ्रांस मैनेजमेंट के बारे में जब पढ़ते हैं, जब उनका रूल्स रेगुलेशन देखते हैं, सो वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन प्रॉफिट. द आउटकम is always concentrated toward the profit. What would be the profit of this aspect, this role, this action and reaction of ours? And in India, when we talk about the management, we always focus on two things. Obviously the profit, but yes, the social wealth. By achieving the profit, but yes, what about the social wealth? That's why India is the only country that incorporates, we have the law of corporate social responsibility. This is our culture. हमेशा से ये हमारे कल्चर के अंदर हमें देखने को, जानने को, सुनने को मिला कि लाइक एक प्रॉफिट अटेनमेंट इज वन थिंग, बट यस, subsequently we have to focus on the social growth of our employees, of our team, of our community. So friends, I think this is what हम शायद और मैनेजमेंट को एक दूसरे तरीके से समझने और जानने का मौका मिलेगा. और सब जो हम लोग अपनी लाइफ में जो डेली इंटरेक्शंस के अंदर जो हम लोग देखते हैं, जो चैलेंजेस फील करते हैं, आई थिंक शायद जो हमारी टीचिंग्स हैं, जो हमारा एक ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, जो हमारे वेदास हैं, हमारे जो होली बुक्स हैं, उनको जब हम अपनी डेली लाइफ और हमारे मैनेजमेंट और गवर्नेंस के अंदर जब लेके आएंगे, तो आई थिंक this will one for sure give us the feel of accomplishment that yes, we are achieving our goals. But uske saath saath I think we'll be the happy team, we'll be the happy company, we'll be the happy organization, we'll be the happy leader. So I think that's more important. When we are thinking about making and achieving the goal, we should always think about the social wealth, about the happiness, about the well-being of our team, of our organization. So thank you so much for the opportunity, and I think we'll be able to see the other side of the management. So I'm open for the questions if anybody wants to ask anything. So I'm open for the questions. Thank you so much. Friends, if you want to ask any question. Hello, good afternoon, sir. I'm Arun Tripathi. Actually, you gave the examples of Ramayana and Mahabharata. Ramayana is all about principles and leading the life according to them. And Mahabharata is making things possible. In recent times, we have seen that if you do something wrong, it is going to haunt you. You cannot escape it. Though in the present circumstances, I believe that whatever may take place, we have to do right thing, so that in later times to come, we do not suffer and our families also do not suffer. So in my belief, Ramayana is the right example to mold our life. So that's my only comment to make. Because you surrounded your whole lecture around these two things, Mahabharata and Ramayana. So in present times, I believe Ramayana is the right thing to do. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I have noted your suggestion. Thank you so much. Anybody else? So I think if you don't ask any questions, so we presume that the concept was very much clear to you. Okay, in that case, I thank you so much, Shri Vikash Sharma ji, for joining and sharing your experience with us and with the participants. Thank you. And Thank participants, you. Okay, participants, now we will be resuming at 2 with a session with Dr. Preetam Khandelwal. Till then, you can take a break. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. And stay safe and wish you a healthy and happy life.
Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.